Good afternoon again. I Good hope afternoon, I sir. am audible. Am I audible? Chalo, good afternoon. So let us today start one important chapter. हम अभी ER डायग्राम वाला जो पोर्शन है उसको कंसंट्रेट नहीं करना चाह रहे हैं बिकॉज उसको बहुत हद तक तुम्हारे पास जानकारी है, मतलब थोड़ा बहुत भी जानकारी है तो है, लेकिन बाद में उसको हम लोग करेंगे ER डायग्राम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल वाला. Okay, so today's class what we will do is just a second. Yeah, today's class we will start with a concept called normalization. Very important chapter and topic. और ये आपको किताब में नहीं मिलेगा उस तरीके से, right? So what I'll do is I will try to explain it to you here. अगर if you face difficulty in understanding, ask me then and there. ठीक है? You switch on your mic and ask me. So we call it normalization. Normalization. बहुत कोई इसको S से भी लिखता है Z के जगह पे. Okay, normalization. Now, in order to understand normalization, let us understand some basic facts. Number one, what is normalization? What is this? Normalization कहने का मतलब है, if we are making a survey in order to create a database or a table, database तो काफी बड़ी बात हो गई, तो let us talk about, अगर हम एक सर्वे करना चाहते हैं, मान लो स्टूडेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, इसका रिलेटेड डेटा हमको रखना है, तो उसका अगर हम सर्वे करते हैं तो you will find I will have name, I will have address, I will have phone, I will have semester, I will have session, I will have exam roll number, I will have registration number, I will have marks in semester 1, marks in semester 2, marks in semester 3 and so on and so on. उसका related जितना information है, उसका fee, whatever, sports, etc., etc., etc. इतना सारा डिटेल उसको रखना होगा. तो द रिकॉर्ड साइज विल बी ह्यूज. एक टेबल अगर बनाएंगे तो उसमें कितना सारा कॉलम हो जाएगा, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड. देयर विल बी सो मेनी कॉलम्स. इसमें कोई परेशानी नहीं है, अगर ऐसा नीड है तो हमको बनाना पड़ेगा. बट द पॉइंट इज एट टाइम्स वी सी दैट देयर इज डुप्लीकेशन. देयर इज डुप्लीकेशन. एक ही डेटा हम बार बार डुप्लीकेट कर रहे हैं, एक ही डेटा को हम बार बार डुप्लीकेट कर रहे हैं. So then in order to find this line, in order to avoid this duplication, और जिसको हम DBMS की भाषा में we call it redundancy, in order to avoid the duplication or redundancy, we break this big table into smaller tables. इस बड़े टेबल को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं. And that process of breaking the large table into smaller tables is called normalization. उस प्रोसेस को हम normalization बोलते हैं.
बट देन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक टेबल लिए और हमारा मन मर्जी यहाँ से 5 कॉलम को ले लिए, यहाँ से 6 कॉलम ले लिए, यहाँ से 8 कॉलम ले लिए, इसको तोड़ देंगे, छोटा छोटा टेबल बना देंगे। तो ऐसे ये नॉर्मलाइजेशन नहीं कहलाएगा। हमारे मन मर्जी हमको तोड़ देने से नॉर्मलाइजेशन नहीं कहलाएगा। सो देन तब हम फिर इस डेफिनेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देन वी से कि इफ देयर इज अ लार्ज टेबल and containing large number of columns, and we see that there is duplication or redundant, which gives rise to redundancy of data, then we break the table into smaller tables by preserving the functional dependency so that when we want to join the smaller tables, they should give me back the original table. They should give me back the original table. तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम इन छोटे छोटे टेबल को तोड़ेंगे लेकिन एक रूल मान के। What is that rule? That is called this functional dependency rule. इसको मानते हुए हमको टेबल्स को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना है, so that when we join these tables, ये छोटे छोटे टेबल को जब हम जोड़ेंगे तो I should get back my original big table. उस समय कोई डेटा छूट नहीं जाना चाहिए या अननेसेसरी एडिशनल डेटा नहीं आना चाहिए. So the join should be lossless join. लॉसलेस ज्वाइन करने का मतलब अगर हम दो टेबल को जोड़ते हैं तो उस समय हमारे पास ना एडिशनल डेटा आना चाहिए और ना कि कुछ डेटा जो है वो छूट जाना चाहिए. So when we join these tables, we should get back my original table as it was. So we should here take care of preserving the functional dependency. Then this is what is your normalization. तो सिंपल वर्ड में एक बड़ा टेबल को छोटे छोटे टेबल्स में तोड़ रहे हैं by following the rule, by preserving the concept of functional dependency, so that whenever we join these smaller tables, I should get back my original table, and the join should be a lossless join. It should not be a lossy join. Okay, it should not be a lossy join. So this concept of removing the duplication of data or redundancy by breaking up a large table into smaller table is called normalization. Let me show you an example. हम एक oracle का example दे रहे हैं, दिखा रहे हैं. Probably you may not understand, बहुत सारा चीज उसका आप नहीं समझोगे अभी. So, but just watch this. Just watch this. Right? I give the username Scott. I write it type here. Okay. हमारे पास दो टेबल है, एक का हम बनाए हैं, उसको हम बता दे रहे हैं select asterisk from EMP. ये हमारे पास एक टेबल है, एम्प्लॉय टेबल. ओके, जस्ट a second. Set line size say 80. Select asterisk from EMP or select set line size 100. Select asterisk from EMP. You can see this. Okay. Employee table में क्या क्या column है? You can see the columns. I hope they are employee number, e-name, job, mg,
MGR, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर, इतना सारा कॉलम हमारे पास है। ओके, ये okay, now you can see the table together. You can see the table at a go. एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, MGR, हायर डेट, सैलरी, कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर, ये एक हमारे पास टेबल। एक दूसरा टेबल है फ्रॉम DEPT। इसमें इतने सारे डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम एंड लोकेशन। ये दोनों टेबल एक्चुअली एक बड़ा सा टेबल था, इसको तोड़ के ये छोटा छोटा टेबल बनाया गया। नाउ यू सी, हम वो बड़ा टेबल को वापस ले आ रहे हैं। वॉच दिस, देन आई विल एक्सप्लेन यू नॉर्मलाइजेशन। सेलेक्ट asterisk from EMPE, DEPT. I will explain all this, where E dot DEPTNO is equal to E dot DEPTNO. ये एक join condition हम लिखे। Now you see, when I join this, again set line size say 120, इसमें आएगा कि नहीं I don't know, right? Again select asterisk from EMPE, BEPT, where E dot DEPTNO equal to D dot DEPTNO. It is still that big, but you can see one thing, क्या क्या आ रहा है? What I wanted to show you was here, डिपार्टमेंट नंबर, दो बार डिपार्टमेंट नंबर आ रहा है, डी नेम एंड लोकेशन। ये 120 के में ये पेज साइज में ये अट नहीं रहा है, बट आई एम सेविंग माय दिस क्वेरी, सेव my1 डॉट SQL। हम इसको सेव कर ले रहे हैं, सो दैट हम इसको जब तक सेट नहीं करेंगे, यू वोंट बी एबल टू सी दैट। सेट line size 150, run here y1। now you can see, now you see this table, दोनों को हम ज्वाइन कर दिए। एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, MGR, हायर डेट, सैल, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर। फॉरगेट अबाउट दिस डिपार्टमेंट नंबर, इस डिपार्टमेंट नंबर को भूलिए। यहाँ पे हमको एक बड़ा सा क्वेरी लिखना था इसको हटाने के लिए, हटाया। फॉरगेट अबाउट दिस डिपार्टमेंट, डी नेम, लोकेशन। ये टेबल एक्चुअली पहले बना था। जब ये टेबल बना था, तो इफ यू वॉच दिस टेबल केयरफुली, तो यू विल फाइंड वन थिंग, कि ये जो आदमी है किंग, इसका डिपार्टमेंट नंबर है 10, इसका डिपार्टमेंट नेम है अकाउंटिंग, जिसका जिसका 10 है उसका अकाउंटिंग है, जिसका जिसका 20 है उसका रिसर्च है। यानी देयर इज डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। Yeah, you can see New York, Dallas, Chicago, Dallas, Chicago, New York. There is duplication of data. Okay. तो इस duplication को हटाने के लिए they have broken it into two parts. तो ये टेबल छोटा हो गया। Select asterisk from EMP, एक ये हुआ, इतना ही भरा है। और you can see select asterisk from DEPT, इतना ही है। तो ये डुप्लीकेशन हट गया, लेकिन दोनों को जोड़ रहे हैं तो हम गेटिंग बैक दिस बिग टेबल। ओरिजिनली जब ये बना था तो इसमें डुप्लीकेशन हमको दिखा, तब इसको तोड़ा गया, सो दैट वन टेबल इज दिस, अनदर टेबल इज दिस। यहाँ पे डुप्लीकेशन है डिपार्टमेंट नंबर में, बट आई कैन नॉट अवॉइड दिस। इसको अगर हम हटा देंगे, आई विल लूज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द टेबल। सो दैट इज व्हाई दे आर
broken into smaller tables keeping in certain functional dependency conditions. वो सोच के इसको तोड़ा गया था। And what is lossy join? अब इसमें तो बड़ा आसानी से ज्वाइन हो गया, एकदम हमको सब टेबल पूरा पूरी दिख रहा है। लेकिन अगर हम एक लॉसी ज्वाइन बनाए, आई वांट टू सी दिस, यू सी सिलेक्ट asterisk from EMP, TEPT. See what happens. कितना बड़ा बना है, कोई मतलब नहीं है। किंग बोल रहा है प्रेसिडेंट है, डिपार्टमेंट नंबर 10 है, अकाउंटिंग है, दोबारा फिर किंग आएगा। किंग प्रेसिडेंट है, 10 है, रिसर्च है। अरे किंग रिसर्च का आदमी है ही नहीं, किंग इज एक्चुअली दिस वन। किंग इज प्रेसिडेंट, ये 10 में है जो कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। सो नाउ द जॉइन हैज टू बी डन दैट वे। ये तो कुछ भी आ गया, 10 जगह किंग आ गया, 10 जगह ब्लेक आ गया, ये क्या है? सो दिस इज कॉल्ड गार्बेज डेटा, दिस इज कॉल्ड लॉसी ज्वाइन। तो हमको ज्वाइन करते समय ये नहीं होना चाहिए कि ऊट पटांग वैल्यूज आ जाए, बट सी दिस ज्वाइन। इस ज्वाइन को अगर हम देखते हैं तो you will be able to see that here I have the complete table as such. So this process is called normalization. Is it okay to you? Any questions? Any questions from anybody? Do you understand क्या किए हम यहाँ पे? Anyone? Can you listen to me? Yes, sir. समझ में आई बात कि क्या बोल रहे थे? Yes, sir. ठीक है। So now let us go to our normalization. So normalization is divided into very many types. So the first one is called the first normal form. We write it as 1NF. First normal form. Second normal form. थर्ड, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के बाद से दो पॉसिबल है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म, या तो अगर हायरार्की बनाए तो फर्स्ट, फिर बनता है सेकेंड, फिर बनता है यहां से दो बनेगा, या तो थर्ड बनेगा या तो BCNF बनता है। BCNF स्टैंड्स फॉर बॉयस कॉड, CODD एक आदमी का नाम है, बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म। उसके बाद जो है इट कम्स टू फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। लेकिन है क्या, मेजॉरिटी ऑफ द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दे आर सेटल्ड हियर। और इसके ऊपर अगर हम इसको सेटल तोड़ने का कोशिश करेंगे तो मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी इतना बढ़ जाता है कि हमारे लिए झमेला ज्यादा हो जाता है। सो वी यूजुअली स्टॉप हियर, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म तक में ही हम रुक जाते हैं टेबल को तोड़ते तोड़ते। अगर जरूरत पड़ा तो, ये जरूरत नहीं है कि हर एक टेबल को फोर्थ नॉर्मल फॉर्म तक तोड़ना होगा, लेकिन जिसमें जहां तक जरूरत है वहां तक हम तोड़ते हुए ले जाते हैं। Then I used another concept called functional dependency. Functional dependency, right? We use this term. Now, what is functional dependency? You see, if I write this, you must have studied maths at some point of time. Fx is equal to y. ये लिखने का मतलब क्या है मैथमेटिकली? मतलब ये है कि y is nothing but a function of x. अगर ये लिखते हैं y is equal to x plus 2, so it is y is nothing but a function of x. So y is a dependent variable, x is an independent variable. x का वैल्यू हम जो भी दें उसके ऊपर y का वैल्यू डिपेंड कर सकता है। Similarly, I could have written that z is equal to function of x and y. I can write this like z is equal to x square plus y square plus 1 होगा। तो z जो है x और y के वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। So this is what is called functional dependency. ये डेटा पे हम लोग यूज करेंगे। This mathematical concept we will use in data.
ठीक है. So now let us see first normal form. First normal form. Let us create a table. एक टेबल हम सोचते हैं. Okay. We say this is bill number, bill date, item code, quantity and unit price. ये हमारा टेबल है. इसमें इतने 5 कॉलम. तो एक इसमें कुछ डेटा भरते, गार्बेज डेटा 1101. बिल डेट क्या है से 8/5/21. आइटम कोड ए खरीदा गया है. कितना क्वांटिटी खरीदा गया है 5. और ए का यूनिट प्राइस कितना था 4 रुपया था पर पीस का. तो टोटल का बात हम नहीं कर रहे. ओके. तो उसी 1101 8/5/21 में आइटम बी भी खरीदा गया था. उसका 4 खरीदा गया था. उसका यूनिट प्राइस है 5 रुपया. Similarly, I can have 1101 same date. आइटम कोड सी खरीदा गया था. 6 खरीदा गया था. उसका दाम था 3 रुपया. 1102 सेम डेट. आइटम बी खरीदा गया था. 3 खरीदा गया था. उसका तो 5 रुपया दाम था बी का. 1102 ने प्लीज कीप ऑन मेकिंग दिस. 1102 से 8/5 को ही खरीदा गया है. इसमें सी खरीदा गया. उसका 2 खरीदा गया है. उसका तो यूनिट प्राइस 3 रुपया था. 1103 9 तारीख को खरीदा गया है. उसमें बी खरीदा गया है 1. उसका 5 रुपया था. 1103 सेम डेट. सी खरीदा गया है 2 पीस. 3 रुपया उसका दाम था. 1104 उसी तारीख को ए खरीदा गया था 5 कॉपीज. और इसका हुआ था ए का है 4 रुपया. So you can see this table. Is it okay for you? I hope you can understand this table. इस टेबल को हम समझ पा रहे हैं. I can definitely understand this table. Please make this table in your copy. हम मिटाएंगे तो भूला जाएगा यहाँ से. तो this table I know. हमको समझ में आ रहा है कि I'm very sorry about this idea. Okay. हमको ये समझ में आ रहा है कि ये टेबल क्या है. But will the computer understand? कंप्यूटर एक रो में प्रोसेस करेगा. जब एक रो में प्रोसेस करेगा यहां आके उसको समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है. What is the meaning of this one? ये क्या है. हमको तो समझ में आ रहा है कि भाई 1102 ही लिखना है. इसको हम शॉर्टकट में लिख देंगे वही है वही. But the computer will definitely not understand. For the computer, this is not a meaningful table. It will not understand these symbols. So then, in order to convert it into a computer understandable form, what we do is, we replace these with their original values. We replace these with their original values. So यहाँ पे लिख देंगे 1102. यहाँ हो गया 8/5/21, 8/5/21, 8/5/21, 9/5/21, 9/5/21. So now this table is in computer understandable form. ये कंप्यूटर इसको अब समझ पाएगा. This is in computer understandable form. So data when represented in this manner, then we say that this data is in first normal
फॉर्म। इससे पहले वाला जो डेटा टेबल हम बनाए थे, इसी टेबल से पहले जो जिसमें ये साइंस देके बनाए थे, दैट वाज अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म। And this one, when the data is represented to the computer in a meaningful manner, then we say that the data is in first normal form. Is it clear to you what is first normal form? Anybody please? Yes, sir. You can understand this, no? कि हम unnormal form किसको बोले और first normal form किसको बोले? Yes, sir. Okay. Thank you. Now we go to second normal form. Second normal form. Do you have a class at 1:20 today? No, sir. Okay. So थोड़ा सा हम इसमें ज्यादा टाइम ले सकते हैं. I want to finish this off. Huh? Okay. Please bear with me. Second normal form. अब यहाँ इसको समझने से पहले let us try to understand something called what is a key and what is a primary key, or what is a super key. What is a super key? Now supposedly your batch, say BCA or IT, okay, BCA or IT, whatever. In your batch, this is a question to you. I want somebody to answer this question. ये question सुनो और इसका आंसर. I want to identify us. और तुम्हारे पास एक चीज है, ये भी हम बता दे रहे हैं, तुम्हारे पास वो नहीं, वो एग्जाम रोल नंबर और तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर, ये नहीं है तुम्हारे पास. ओके, ये कंडीशन है. एग्जाम रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर तुम्हारे पास नहीं है. तुम्हारे पास क्लास रोल नंबर है, उस बाकी सब चीज. नाउ हम तुम्हारा एक स्टूडेंट को, आई वांट टू आइडेंटिफाई अ स्टूडेंट यूनिकली फ्रॉम योर बैच. व्हाट वैल्यूज शुड आई नीड टू नो? हमको क्या जानना पड़ेगा? आई वांट टू नो, आई वांट टू आइडेंटिफाई अ स्टूडेंट यूनिकली फ्रॉम योर बैच. हमको क्या जानना पड़ेगा? क्या जानने से हम किसी को खोज निकालेंगे? क्लास रोल नंबर. क्लास रोल नंबर, करेक्ट. नाउ व्हाट्स दिस? योर रोल नंबर इज से 697, राइट? ये सेमेस्टर 6 में भी 697 है और सेमेस्टर 2 में भी 697. तो इज इट यूनिक? नो सर. तो फिर क्या चाहिए होगा? रजिस्ट्रेशन नंबर. You don't have. You don't have. फोन नंबर सर. फोन नहीं है, वो भी नहीं. ईमेल आईडी? नहीं, वो सब यूनिक वाला है, वो सब नहीं. नेम सर? नहीं. तो भाई 697 का नाम संजय है और इसका सेमेस्टर 6 में भी बाई चांस हो ही सकता है 697 का नाम संजय है. बैच सर. Batch. So you require, you know what? Your class roll number, right? Session or honors. Class roll number, session and honors अगर हम जानते हैं तो can I not identify a student uniquely? हाँ या ना? Yes, sir. तुम्हारे पास अगर एग्जाम रोल नंबर है तो वो तो एकदम से यूनिक है, ये पता रहेगा, हम खोज के निकाल लेंगे. रजिस्ट्रेशन नंबर भी रहा तो उसको हम खोज के निकाल लेंगे, ठीक है. लेकिन ये दोनों नहीं है, फोन नंबर भी नहीं है, ईमेल भी, जो सब यूनिक मटेरियल है नहीं. ओके. तो तब इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई अ स्टूडेंट ऑफ योर बैच यूनिकली, आई नीड टू नो रोल नंबर, सेशन एंड ऑनर्स. ठीक है. नाम का हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा. I can identify a person uniquely. ये रोल नंबर है उसका, ये सेशन है उसका, ये ऑनर्स है उसका. ये हम जानेंगे तो I can identify you uniquely. So then, अब अगर हमारे पास ऐसा होता कि you have exam roll
you have phone, you have registration, you have email, you have name, roll number, session, honors, marks, 1 2 3 सब है। अब एक चीज देखो, इफ आई नो एग्जाम रोल नंबर, आई कैन आइडेंटिफाई, इसमें अगर बहुत सारा रो है, 125 रो अगर है, तो उसमें से तुम्हारा एक स्टूडेंट का के लिए एक ही रो है, उसका एग्जाम रोल नंबर, उसका फोन, उसका रजिस्ट्रेशन, इट इज वन सिंगल रो फॉर वन स्टूडेंट। सो इफ आई नो द एग्जाम रोल नंबर, आई कैन आइडेंटिफाई अ स्टूडेंट अगर है। इफ आई नो द फोन नंबर, ये भी हो सकता है दो भाई है, भाई एक ही फोन है, तो गड़बड़ हो सकता है फोन में, बट स्टिल आई एम अज्यूमिंग इट इज यूनिक। फोन नंबर जानते हैं तब भी हम क्या कर सकते हैं, आई कैन आइडेंटिफाई अ रो यूनिकली। रजिस्ट्रेशन नंबर जानते हैं तब भी आई कैन आइडेंटिफाई अ रो यूनिकली। ईमेल जानते हैं तब भी आई कैन आइडेंटिफाई अ रो यूनिकली। ओके, नहीं तो रोल नंबर, सेशन और ऑनर्स अगर हम जानते हैं तो आई कैन आइडेंटिफाई अ रो यूनिकली। इज इट ओके? दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। सो देन DBMS says कि the attribute or the attributes, attribute किसको बोलते हैं? कॉलम हेडिंग्स को हम attribute, तो attribute इसको हम की भी बोलते हैं, इसी को हम की बोलते हैं, attribute। So attribute या की, one key या more than one keys, if using that I can identify a row uniquely, so then that key or that combination of keys are called सुपर, उसको बोलेंगे सुपर की। और ओके, सो देन यू कैन सी ये एग्जाम रोल नंबर इज वन सुपर की, फोन इज ऑल्सो वन सुपर की, रजिस्ट्रेशन नंबर इज ऑल्सो वन सुपर की, ईमेल इज ऑल्सो वन सुपर की, और द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस इज ऑल्सो अ सुपर। बट दिस वन इज कॉल्ड अ कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट काहे कॉम्पोजिट भाई? एक से ज्यादा है इसमें मेंबर्स इस की का। देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कीज इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ सुपर की, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ कॉम्पोजिट की और कॉम्पोजिट सुपर की, व्हाटएवर। So you understand what is a super key? The attribute or the group of attributes using which I can identify a row uniquely is called a super key. अब इस केस में ढेर सारा सुपर की, लेकिन जब हम टेबल बनाएंगे डेटाबेस में, तो उस टेबल में एक ही की हम लोग यूज कर सकते हैं कि भाई इस की को हम यूज करेंगे एज दिस सुपर की। इतना सारा अवेलेबल की में से तो कौन चुनेगा भाई? तो देयर कम्स द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। वो बोला कि नहीं, हम इस की को जो है रजिस्ट्रेशन नंबर को हम चुनेंगे एज द सुपर की। सो देन दैट सुपर की which is considered taken as the DBA to be used to identify a row uniquely will be then called primary key. That is what is called primary key. उसके अलावा बाकी सब जो बच गया they are called candidate keys. Candidate key. तो यानी बहुत सारा सुपर की एक टेबल में रह सकता है या नहीं भी रह सकता। अगर ये सब नहीं होता, so the only key left is this one, which is a composite key. तो DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इसको चुनता है in order to identify a row uniquely। ये बहुत जरूरी पड़ता है टेबल बनाने के। So then that key will be called a primary key. Otherwise primary key का definition भी यही बोल रहा है, if there is more than one possible super key and the super key which the database administrator selects to create the database is called the primary key. That is what is called the primary key. Agreed? Is it clear to you what is primary key? Anyone? कोई doubt? No, sir. Okay, fine. If you have doubts, you definitely can ask me the question then and there. तो तब हम लोग अब आ रहे हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। इतना हमारे पास आइडिया हो गया।
So now we talk about second normal form. Okay. So now we go back to my previous table. Second normal form में हम टेबल को तोड़ेंगे by preserving the functional dependency. Here you see one thing in this table. Oh, just a second. I have lost my table. मिट गया because of this computer problem. क्या? Fine. Let us redraw. आपके पास वो टेबल होगा. You don't have to write it, but let me write this. We had bill number. We had bill date. We had item code. हम पूरा टेबल नहीं बना रहे. तो काम हम आपके लिए छोड़ेंगे. Bill number, bill date, item code, क्वांटिटी एंड यू प्राइस, ये हम बनाए थे. अब इसमें हमको खोजना होगा कि भाई फंक्शनल डिपेंडेंसी है क्या. तो हम देख रहे हैं हाँ है. हम देख रहे हैं कि हाँ यस देयर इज फंक्शनल डिपेंडेंसी. नंबर वन. और इसमें व्हाट इज द कंपोजिट की. इसमें एक रो को, इस जो टेबल है, इस टेबल में एक रो को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्या जानना जरूरी है. कैन एनीवन टेल मी. इस टेबल में आपके पास टेबल है, यू कैन रेफर टू द टेबल. इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई अ रो यूनिकली इन दिस टेबल हमको क्या जानना पड़ेगा. बिल नंबर. बिल नंबर अगर 1101 बताए तो एक रो आइडेंटिफाई हो जाएगा विथ आइटम कोड. आइटम कोड ए. आइटम कोड ए हमको पता है, उससे एक रो आइडेंटिफाई होगा क्या. बिल नंबर विथ आइटम कोड. करेक्ट यू आर. whosoever said this, bill number with item code. ये अगर हम जानेंगे, I can identify a row uniquely. You can check in your copy. 1101 B यूनिक होगा वो. करेक्ट. सो यानी हमारे पास ये बिल नंबर और आइटम कोड, ये दोनों मिला के देयर इज अ प्राइमरी की. एंड किस तरह का प्राइमरी की हुआ ये. कॉम्पोजिट. ये कॉम्पोजिट हुआ ना, दो की है ना. सो दिस इज कॉम्पोजिट की. क्या क्या है. बिल नंबर एंड आइटम कोड. ओके. नाउ दिस, ये दोनों जो है, दीज आर काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. इसके ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है हमको देखना होगा. तो वी फाइंड आउट कि बिल नंबर के ऊपर एकदम डायरेक्टली बिल डेट डिपेंड कर रहा है. यू कैन चेक. जो भी बिल नंबर है दैट इज बिल डेट, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बिल डेट. वो आइटम कोड पे बिल डेट डिपेंड नहीं करता. थोड़ा सा अगर केयरफुली यू सी द टेबल, यू विल फाइंड आउट बिल नंबर एंड बिल डेट दे आर काइंड ऑफ डायरेक्टली रिलेटेड. आइटम कोड के ऊपर जो चीज डायरेक्टली रिलेट कर रहा है क्या है बताओ तो. कौन सा इसमें से ऐसा कॉलम है जो कि आइटम कोड के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है. प्राइस. यूनिट प्राइस. करेक्ट. परफेक्ट. यूनिट प्राइस. ओके. और तो बचा है तो क्वांटिटी, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है. क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. नंबर. बिल नंबर पे क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है. 1101 वो वेरिएबल होगा. और वो बिल नंबर और आइटम कोड दोनों पे डिपेंड करता है. चेक दिस. क्वांटिटी जो है वो बिल नंबर और आइटम कोड. भाई 1101 उसमें एक हर दें तो उसमें पता लग रहा है ना कि क्वांटिटी कितना लिया. सो नाउ दिस इज माय डिपेंडेंसी डायग्राम. तो हम फंक्शनल डिपेंडेंसी हम एक्स और वाई पे बता रहे थे. नाउ यू कैन सी हियर डेटा पे बता रहे हैं. बिल नंबर के ऊपर बिल डेट डिपेंड कर रहा है. बिल नंबर और आइटम कोड के ऊपर क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है और आइटम कोड के ऊपर यूनिट प्राइस डिपेंड कर रहा है. ओके. सो नाउ the definition of 2NF
NFCs. Definition of two NFCs. Note this down. If a relation is in first normal form, if a relation is in first normal form, हमारा ये जो टेबल था वो तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में था ही. If a relation मतलब टेबल, if a relation is in first normal form and there is a dependency over a composite key, then there will be duplication. Hence, we try to remove the dependency from the composite key by breaking the large table into smaller tables, and those smaller tables are said to be in second normal form. ठीक है, तो वो जो बड़ा टेबल था उसको अब हम तोड़ते हैं डिपेंडेंसी के ऊपर, तो एक टेबल बनेगा बिल नंबर, आइटम कोड एंड क्वांटिटी. दूसरा टेबल बनेगा बिल नंबर एंड बिल डेट. तीसरा टेबल बनेगा आइटम कोड एंड यूनिट प्राइस. आइटम कोड और यूनिट प्राइस ए, बी और सी कितना था? 6 रुपया. यू मेक दिस टेबल 1101, 1102, 1103, 1104 तक शायद ये. You can make this, just make this table someone make this table. 8512. 8 ये वाला बिल डेट. Yes. या करेक्ट. 8512 21. I'm sorry. बोलो. 8521. 8521 करेक्ट. 8521. 8521. नहीं, एक में 95. 9521 और 4 में 9521. 9521 ठीक है. ये कितना होगा? ए का कितना होगा? 6 रुपया, 5 रुपया. 4. बी का 5. सी का 3. ओके. इसको यू कैन मेक बिल नंबर, आइटम कोड, क्वांटिटी में यू कैन मेक 1101 ए, 1101 बी, 1101 सी, ओके, 1102 जो भी है. यू कैन मेक दिस टेबल. 3 टेबल यू कैन सी हियर. इस टेबल में डुप्लीकेशन जो है बहुत घट गया. 1101 और 1102 अलग अलग मटेरियल है, इसलिए 8585 ये डुप्लीकेशन नहीं है, ये डेफिनेटली अलग चीज. यहां यू कैन सी वहां पे पुराना वाला टेबल में हर जगह जहां पे भी आइटम कोड लिख रहे हैं वहां पे यूनिट प्राइस लिख रहे हैं. अरे इतना क्या जरूरत है? अगर हमको पूरा टेबल एक साथ ले आना है तो ये बिल नंबर से हम इस टेबल में जाएंगे तो हमको बिल डेट मिल जाएगा. इस आइटम कोड से हम इस टेबल में जाएंगे तो हमको उसका यूनिट प्राइस मिल जाएगा.
So then I can get back my old original bigger table completely by joining these three tables in a meaningful manner. So then these tables, don't consider this as duplication. इसको duplication मत मानना because they are separate. 1101 and 1102 are two different elements. Okay. So then I can see that there is no duplication. Remove कर दो. लेकिन इस table में फिर से duplication. ये 1101, 1101, 1101 आते जाएगा ये सब. ये तो एक ही मटेरियल है. But I told you कि whenever there is a dependency over composite, there will be duplication of data. एकदम second normal form के definition में you have written. Whenever there is a dependency over a composite key, there will be duplication of data. तो यहाँ composite key के ऊपर dependency है, bill number और item code के ऊपर quantity depend करता है. There has to be duplication. इसको अगर हम तोड़ ताड़ दें तो I will be spoiling the functional dependency. Dependency diagram हमको बता रहा है कि ऐसा है. This is called dependency diagram. Dependency diagram हमको बता रहा है कि this quantity is functionally dependent on the composite key. Duplication होना ही है. इसको हम तोड़ेंगे तो I will be spoiling the functional dependency. So we don't break this table further and we stay here. तो हमारे पास तीन टेबल मिला. All these three tables are in second normal form and they cannot be further broken. अगर हम तोड़ दें तो I cannot join them in order to get back my original. जो first normal form वाला टेबल है हमको नहीं पा सकते. So note down one line. Note down one line. In the table consisting of bill number, item code and quantity, we can see that there is duplication of data. There is duplication of data because there is a dependency over composite key. Dependency over composite key. If we break this table, into a smaller table, we will be spoiling the functional dependency. Hence, we don't go any further and stop here. And all these three smaller tables are said to be in second normal form. Correct? You have any difficulties here? Anybody, any questions? Fine. So now let me go to third normal form. There, just note down first
एक्सप्लेन। ये एक्चुअली एक पुराना किताब में हम पढ़े थे कभी वे बैक, तो ये यू वोंट गेट इन दीज टुडेज बुक्स। ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है। मेकिंग दिस पूरा मैथमेटिक्स को हटा के हम सिंपलर फॉर्मेट में आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। यू कैन रेफर टू एनी अदर बुक। दिस प्रोबेबली ये पूरा चीज आई डोंट रिकॉल, आई प्रोबेबली स्टडीड इट फ्रॉम अ बुक ऑफ राजा रमन, और उस किताब का नाम था सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। उस किताब में था राजा रमन। If you get hold of this book, you can study this normalization portion. Fine. Third normal form. Now you write down. If a relation is in second normal form, and there is a dependency of non-key attributes among themselves apart from the key attribute, then a normalization called 3NF is required. Normalization called 3NF is required. ठीक है, let us see this. दो चीज हम यूज किए थे. There is a dependency among the non-key attributes apart from the key attributes. क्या है? एग्जाम्पल से सीखते हैं. मेरे पास एक टेबल है, रोल नंबर, उसके बाद है सेमेस्टर, हॉस्टल. डोंट गो बाय द डेटा, ये गार्बेज डेटा हम बना रहे हैं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. रोल नंबर 510, 511, 512, 513, 514, 515, ये रोल नंबर है 516. ओके, यू कैन मेक दिस अगेन. सेमेस्टर, ये मान लेते हैं ये है सेमेस्टर 1 में, ये है सेमेस्टर 1 में, ये है सेमेस्टर 2 में, ये है सेमेस्टर 3 में, ये है सेमेस्टर 2 में, ये है सेमेस्टर 3 में, ये है सेमेस्टर 1 में. आई टोल्ड यू दिस इज काइंड ऑफ अ गार्बेज डेटा, हम सोच के निकाल. अब ये जो है इसको 1 वाला को हॉस्टल ए मिलता है, 2 वाले को हॉस्टल बी, 3 वाले को हॉस्टल सी, बी, सी एंड ए. ओके, सुनो, हियर यू ट्राई, जो लाइन आप लिखे हुए हो उस लाइन को एक बार पढ़ने के बाद यू कंसंट्रेट हियर एंड टेल मी एनी वन ऑफ यू कि इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई अ रो यूनिकली हमको क्या जानना जरूरत होगा. इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई अ रो यूनिकली हमको क्या जानना जरूरत होगा? रोल नंबर. परफेक्टली ऑलराइट, करेक्ट. तो हमारा प्राइमरी की कौन सा हुआ? प्राइमरी की रोल नंबर. ठीक है, लेकिन हम यहां पे एक चीज देख रहे हैं कि ये रोल नंबर जो है इस पे सेमेस्टर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, रोल नंबर पे हॉस्टल भी डिपेंड कर रहा है. और ये रोल नंबर किस हॉस्टल में पता लग रहा है हमको, ये रोल नंबर किस सेमेस्टर में दिख रहा है. लेकिन ये सेमेस्टर और हॉस्टल भी आपस में डिपेंडेंट है, ये दिख रहा है कि नहीं? कैन यू सी दैट कि 1 है तो उसको ये मिलेगा, 2 है तो बी मिलेगा, 3 है तो सी मिलेगा. कैन यू सी दिस डिपेंडेंस? सो दैट इज व्हाट यू हैव रिटन. इफ देयर इज
a dependency among the non-key attributes. ये दोनों की मतलब प्राइमरी की, प्राइमरी की तो रोल नंबर है, तो लेकिन रोल नंबर के अलावा इन दोनों का आपस में डिपेंडेंसी दिख रहा है. देयर इज अ डिपेंडेंसी अमंग नॉन की एट्रीब्यूट्स अपार्ट फ्रॉम द की एट्रीब्यूट. इसके ऊपर तो डिपेंडेंसी था ही, लेकिन आपस में डिपेंडेंसी दिख रहा है. Then we can break this table and those smaller tables will be said to be in third normal form. लेकिन हम शुरू किए थे एक चीज से कि this table is in second normal form. You will ask me a question कि कहां से आपको पता लगा कि second normal form में? Correct question. Because the point here is हम ये assume किए थे कि कोई एक बड़ा सा टेबल था, उसको हम second normal form में तोड़े हैं. सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तोड़े हैं तो उसमें से एक टेबल जो है वो ये वाला है. उसके बाद हमको दिख रहा है कि नहीं भाई इस तरह का कंडीशन हो रहा है, तब उसको जो तोड़ेंगे दैट इज कॉल्ड थर्ड नॉर्मल फॉर्म. लेकिन ऐसा हो सकता है ये कि हम एक टेबल बनाए शुरू में ही जो कि इस तरह का टेबल, हम कोई बड़ा टेबल को तोड़ते हुए नहीं आए, यही मेरा टेबल, तो तब इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म. लेकिन हम यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि नहीं भाई ये सेमेस्टर और हॉस्टल आपस में डिपेंडेंट हो रहा है, तो नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर इसका डिपेंडेंसी है अपार्ट फ्रॉम द की एट्रीब्यूट. तो इसका मतलब है कि हमको इसको जो तोड़ने का जो रूल हम लगा रहे हैं इस पे, वो है कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाएगा. इसीलिए पिछला वाला टेबल जो है दैट इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ये हमको मान लेना. ओके, सो विद दिस assumption अब हम इसको तोड़ देंगे. अब हम तोड़ेंगे कैसे? या तो रोल नंबर सेमेस्टर बनाए, एक ही चीज है, या तो रोल नंबर सेमेस्टर बनाए या और रोल नंबर हॉस्टल बनाए. ओके, ये दोनों में से कोई एक बनाएंगे. और एक क्या बनाएंगे? सेमेस्टर और हॉस्टल. तो यू कैन कंप्लीट दिस टेबल. तो बना ले सकते हो इसको देखते हुए. लेकिन ये वाला टेबल बड़ा छोटा हो जाएगा, 1A 2B 3C, यही हो जाएगा. एंड यू कैन फाइंड आउट रोल नंबर एंड सेमेस्टर. तो जहां सेमेस्टर पता होगा यू कैन कम टू दिस टेबल और पता लग जाएगा उसका हॉस्टल क्या है. अगर ये टेबल बनाते हो तो रोल नंबर से उसका हॉस्टल पता चल जाएगा, इस टेबल से उसको पता लग जाएगा कि उसका सेमेस्टर क्या है. तो यू कैन गेट बैक योर ओरिजिनल टेबल फ्रॉम दिस. तो यहां हम इसको और इसको बना रहे हैं, या तो इसको और इसको बना रहे हैं. तो दो टेबल जो भी बन रहा है, those tables are said to be in third normal form. Okay? तो तुमको क्वेश्चंस आता है, what do you understand by normalization? Explain the different forms of normalization by giving examples. So you can write this. जो हम तुमको लिखाते जा रहे हैं, इस तरह एग्जाम्पल देते जा रहे हैं, you can write this. You will get enough marks in the examination. ठीक है? छोड़ दे क्या कि कंप्लीट करें? बच्चा लोग क्या बोलते हो? अब एकदम अखंड शांति छाया हुआ है. छोड़ दीजिए सर. छोड़ दें? भूख लगे तुमको? अच्छा, आज के लिए छोड़ दे रहे हैं यू, लेकिन इसको बी प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो. ओके, इस वीक का मैंने वी डोंट हैव क्लासेस ऑन सैटरडेज ऑन संडे. So Monday to Friday we have classes. So we have definitely another class tomorrow. So वहाँ I will talk about BCNF and fourth normal form. Fourth normal form और BCNF बहुत tough नहीं है, but still you try to understand these materials first, and then we will discuss it. ये सब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे थोड़ा और कर लेता है. I will give you questions through the LMS. और वहां पे आई विल टेक योर फीडबैक ऑल्सो एंड आई विल टेक योर आंसर्स ऑल्सो. ठीक है? सो अच्छा, आई हैव गिवन यू योर एनरोलमेंट नंबर्स एंड लॉगिन्स एक्सेट्रा in this WhatsApp group. I think you must have received that. Yes, sir. So yes sir, you have received that. Huh? So fine. You can refer to, हम 3 लेक्चर तो वहां पे चढ़ा चुके हैं, and even Rishi was helping me out in giving the lectures in YouTube. उसका भी वो लिंक पेस्ट कर ही रहा था. The second lecture was there already,
And what I would like you to do is you study this, of course. You study the book, try to find out other things. How do you write the answers, etc., etc. और AWT का हम देख रहे हैं. I am trying to get hold of. अभी हम ट्राई कर रहे थे इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप ऑफ ओरेकल. वो अगर हम लेते हैं ना तो यू कैन सिट उसमें इनफ मटेरियल्स दिया हुआ है. यू कैन रेफर टू ओरेकल का अपना साइट है, उसमें यू कैन क्रिएट योर ओन लॉगिन, एक अपना बना सकते हो. इट इज एब्सोल्युटली फ्री. लेकिन अगर हम इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप लेते हैं तो आप ओरेकल सर्टिफाइड प्रोग्रामर वगैरह का वो सिखाता वही है. दे कैन अलाउ यू टू सिट फॉर द एग्जामिनेशन ऑनलाइन एंड गिव यू सर्टिफिकेशन. हम कोशिश करते हैं एक बार आप लोग देख लो उसको कि क्या वो आपके लिए यूजफुल होगा. इफ यस देन यू टेल मी. So you can take Oracle certified programmer certificate from Oracle. They charge a fees, of course, but they said they will give you certain rebates. वो जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा, you let me know. ऐसे हम इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप तो हम ऐसे भी लेंगे, but how much effective will be that for you, ये आप देख लो and please let me know. ठीक है? So thank you very much for attending. See you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.